Okay, good morning, everybody, and welcome to this session in the Zoom meeting. आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो मैं अंग्रेजी में आपको जवाब दूंगा, आप हिंदी में बोलेंगे तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा। Okay, we'll start with the questions now. The first one. Yes, Jigna. Yes. प्रणाम परमे Pranam. Paramatma ji, last time I couldn't speak to you. I was half the way. I lost my internet, so I couldn't speak to Okay. you. But now today I've got the privilege to talk to you. I'm so happy and thank you so much for this privilege. And sir, one request. I know you don't give the personal questions answers, but this is for everyone, the people who are suffering like me. So, your healing card, I always pray to that. Means I share my things. And I got the relief. And I'm really thanks to you that because of you, I'm very this thing. I'm telling you, I'm बहुत दुखी. I lost my brother in January 2nd. I lost my sister-in-law on 19th of June within 5.5 months. My sister-in-law, I showed your healing card, but when my brother passed away, I didn't come across you. So will they have gone to you, sir? Paramatma? Yeah, they will be going back. Their soul will be going back. Yes, sir. And I always get the feeling that you will bring them back to me. I don't know why I get that feelings. Raja King is giving me feelings or Paramatma is giving me. I don't know. But every day it comes in my mind that you will bring them, both of them with me. I don't know why it comes. Is it Paramatma is giving me? Bring them back in the physical body or in your dreams? In my dreams or anyway, but I always feel that you will bring in. I have good faith in you, sir. I'm really telling you, I really trust you. I really trust you, sir. You see, And I'm their energy bodies are with you. Because of the way you are, they have not moved on. Their energy bodies are with you. I don't know if you can feel them or not, but I can see that they are with you. Now sometimes I feel that. But the point is, you will not be able to communicate with them. Yeah, you can talk and they will listen. Whether you can listen to their talk, again, is a matter of whether it is in your storyline or not. Yeah. Yeah. But Jigna, one thing you must understand is everyone dies. Everyone has to go. I know. Number one. Number two, it is very common for people who are living that they will go into some kind of pain, some kind of missing feeling, some kind of you will feel a vacuum in your life when people go away, right? Yes. So Yeah. this is the way that King created the whole structure. That even with the death of someone, you will continue to create the food for the king. Yes. And that is why you are not able to, in spite of knowing everything intellectually, you still continue to create that food with your pain and with your grief. Only thing now, or the alternate now you have, is keep talking to God or sharing this pain and grief with God. I am not saying God in one shot will remove everything, because that is not the way God works. Yes. God doesn't even work like
You will stop creating food for the king because that was a curse God gave and God will not come in the way. Yet you will find some shift that will be very soothing and that will bring you some level of sortedness. And And sir, there is no way yes, that God will not respond. God will I respond. know. I received a good, very good, result from the healing card. I'm telling you, thanks to you, sir. I'm really thankful to you. But one thing I don't understand, sir, कि when अपने घर में भी अगर कोई बच्चा ऐसा होता है फालतू, तो हम लोग उसको डांट के इस घर में बिठाते या उसको सुधारने की कोशिश करते. परमात्मा क्यों नहीं करता है? ही इज द मेन culprit of doing all this. Why he is not doing? Why people He, suffers? he is not doing because that is not the way God works. There is a big difference between the way how God works and how King works. King means his son. I know, sir. And you cannot expect God to work like that. या हम लोग कैसे करते हैं? तो मैं वो सोचती हूँ अंदर कि ये भगवान, ये गॉड क्यों ऐसा करते, क्यों हमको सफर करते हैं? दो आई एम इन योर शरण, हम लोग आपके शरण में हैं. और दूसरी एक चीज है परमात्मा जी, कि जब भी व्हेन आई केम टू नो यू थ्रू समवन, but I was very much eager to buy a book, but I had no money that time. So I was inside, I was crying. One day, one of my neighbor, he is also Bengali, Mukherjee. I spoke to him. I said, "You know Pradeep Mukherjee ji?" He said, "Yes, I know him." He said, I listen his podcast and everything. Then I said, "See, I want a book." He said, "Don't worry, I've got the book and I'll give you." This is Paramatma's sign that I have to come to God. That's why he gave me all this. Yes, true. एंड परमात्मा, मेरे घर में सब लोग भगवान को मानते हैं, पूरा दिन वही सब होता है. मैं जब बोलती हूँ तो हमको बोला जाता है कि ये क्रिश्चियनिटी है, ये है. मैं बोली ठीक है, मैं वही हूँ. मेरे घर में 250 साल पुरानी हमारे भगवान को पूजा है. आई डोंट डू, आई यूज्ड टू डू बिफोर. नाउ आई डोंट डू. द टाइम व्हेन आई कम टू यू, आई डोंट डू एनीथिंग. नो, नथिंग आई डू. I used to, pray to Hanumanji a lot. I had very this thing attachment to the Hanumanji, but I've lost everything after my brother's death. I left everything and I've come to you. So sir, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ. Yeah, you are connected with God. बिकॉज एवरी डे हीलिंग कार्ड के साथ में बात करता है. मेरे को बहुत ये होता है, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं. मेरा कोई नहीं. आफ्टर माय ब्रदर्स डेथ आई ब्रोक अप माय सेल्फ. मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूं. प्लीज हेल्प मी इन दैट. प्लीज गाइड मी. प्लीज गाइड मी सर. God will guide you, but it will not come instantly. Only thing is, it will happen gradually. Keep sharing your pain, your grief, and missing feeling, and feeling that you are all alone, that there is no one in your life. Keep sharing that. माँ जी, बहुत थैंक यू. मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पूछना है. आई हैव ऑलवेज प्लीज, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड सर. मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप इतना अच्छा काम करें. थैंक यू, सैल्यूट टू यू. थैंक यू सो मच एंड गाइडिंग मी. एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, कि जब भी आपका टीम को बोलो कि हम, मैं लास्ट टाइम भी मुझे नहीं मिला चांस एंड आई वाज क्राइंग फ्रॉम 11 o'clock to 5 o'clock. आई वाज वेटिंग, आई डिडंट गेट चांस. सो नेक्स्ट टाइम आल्सो प्लीज, आई वांट टू टॉक टू यू. प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट. प्लीज, मैं आपसे बात करती, मुझे अच्छा लगता है परमात्मा जी. Jigna, we have such a long list that we आई cannot नो. bring people again and again. So एंड at सर, least have some compassion for them, those who are not able yes, to yet I come.
Yes, I believe because last time when I couldn't get chance, even I used to feel that same way what you are saying. I understand that I understand everything because everybody is suffering. So everybody wants to talk to you. So that's why, sometimes I feel that I should come to you, but I don't know where are you. So where I'll come and see you. इतना अंदर से फीलिंग होती है कि I should come to you, but I don't know how I'll come and how I'll meet you. मुझे I समझ में don't नहीं आ रहा है. I don't meet people I one know you on one. don't meet anyone. I know that. I know, but inside I get feeling that I'll meet you. I'll meet you. I don't know why. And I'm from Mumbai. Sir, sometimes you come to God. Mumbai for the meeting. So can you call me in that meeting? Okay, बॉम्बे में जब आप मीटिंग. but actually I don't travel anymore. अच्छा, because I have seen your meetings and all in Mumbai also. Those used to happen So earlier. Now I don't travel anymore. अच्छा, ओके सर. Okay. जैसे मेरे भाई और भाभी के बारे में बताया, आपने बताया कि उनका एनर्जी बॉडी आपके साथ है, तो उनको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना परमात्मा जी? कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जितना खुश रहोगे वो उतना खुश रहेंगे. आपको दुख देख के उनको थोड़ा तकलीफ होगा. अच्छा, और मेरी भाभी को तो आपका स्वरूप का दर्शन कराया था. वो और मेरा भाई दोनों भी आपके शरण में आएंगे ना? आपका वॉइस कम ज्यादा हो रहा है. हेलो, हाँ अभी अभी आया क्लियर. आवाज? हाँ अभी क्लियर है. हाँ. यस. मेरा भाई, मेरा भाभी को तो आपका स्वरूप का दर्शन कराया था मैंने. हम्म. तो मेरा भाई और भाभी आपके शरण में है ना परमात्मा जी? हाँ, परमात्मा ऐसा बोल रहे हैं उनका सोल तो चला गया है, लेकिन अच्छा. उनके जो एनर्जी बॉडीज है इस वक्त वो आपके पास है. और जब हाँ. आपका मृत्यु होगा तो वो आपको साथ वो भी निकल जाएंगे. अच्छा, पण उनको तकलीफ तो नहीं होती होगी कोई ना कोई? तकलीफ नहीं है, लेकिन परमात्मा बोल रहे हैं आप जितना खुश रहेंगे उतना वो भी खुश रह सकते हैं. अच्छा जी. और कल मैंने आपने वो कर्मा और वो सब दिखाया था. अच्छा, मैं तो रोज आपका पॉडकास्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम देखती हूँ परमात्मा. मालूम नहीं, इतना मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बात देखने को. तो ये आपकी कृपा है मेरे पे. हाँ, ये गॉड का ग्रेस है. हाँ, तो प्लीज यस. मेरे पे हमेशा, और प्लीज मेरे भाई भाभी को आप अच्छी तरह से रखना, प्लीज. वो तो अच्छे तरह से ही. अभी आप अच्छी तरह रहो. जो थोड़े थैंक यू से सो दिन मच बाकी है, परमात्मा जी. जो थोड़े से दिन हम्म. बाकी है उसको थोड़ा सा आप कम रोके और एंजॉय करके जाओ. ओके सर, प्रणाम एंड थैंक यू एंड अगेन. ओके. थैंक यू जिग्ना प्लीज, जी. may I have your grace, God, please? यस. थैंक यू. यस. Yeah, thank you. Thank you. जिग्नेश जी. बोलो. आप सुन पा यस. रहे हो? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ. परमात्मा जी नमस्कार. नमस्कार. अच्छा परमात्मा जी, हम पहले एक आध्यात्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा. कहाँ जुड़े हुए थे? आध्यात्मिक संप्रदाय से. हाँ हाँ ठीक है. और फिर 3-4 महीने से हम आपसे जुड़ गए हैं बाद में भी. तो मेरा थोड़ा क्वेश्चन है वो उसके बारे में, आध्यात्मिक संप्रदाय के बारे में. तो पहले मैं सिचुएशन के लेके बात करता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको. इसमें वो संप्रदाय में ऐसा बताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो हमारा पर्स चोरी हो जाता है, तो चोरी होने के बाद हमारी मनोदशा बिगड़ जाती है, मतलब हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो उसमें हम कैसे स्टेबल रह सकते हैं? तो उसमें ऐसा ही सीखा जाता है कि पहला स्टेप जो है वो सेपरेशन का है, जिसमें वो ऐसे बताते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी है, मतलब जो जिग्नेश है उसका पर्स चोरी हुआ है, और हम जो है, हम क्या है, हम आत्मा है. वैसे वैसे बाद में पता चला आपके थ्रू के वो जिसकी बात कर रहे हैं वो आत्मा नहीं, वो ईश्वर है. लेकिन उनके मुताबिक वो सेपरेशन में ऐसा हो जाता है कि पर्स फिजिकल बॉडी जिग्नेश का चोरी हुआ है, मैं आत्मा हूं तो मेरा नहीं चोरी हुआ. ये स्टेप 1 है. तो दूसरा स्टेप ऐसा है कि वो कर्म के सिद्धांत पे जाता है. वो ऐसा बताते हैं कि कर्म के सिद्धांत के हिसाब से पर्स मेरा ही क्यों चोरी हुआ, तो पिछले जन्म का कुछ होगा पेंडिंग कर्म, उसके हिसाब से पर्स मेरा चोरी हुआ है. और दूसरा जो पर्स चोरी करने वाला जो सामने वाला जो है,
वो भी निर्दोष है, क्योंकि वो भी निमित्त ही है एक इसके हिसाब से। और ये कर्म के सिद्धांत वो के हिसाब से ये कर्म अभी खत्म हो गया, और चोरी कर्म होने के बाद ये कर्म अभी खत्म हो गया। और ये जो दो स्टेप है, सेपरेशन और ये कर्म सिद्धांत है, वो हमको सिर्फ समझ समझ करना है। उनको वो वर्तन में आए कि नहीं आए उसकी कोशिश नहीं करना, मतलब ये अकर्ता भाव से हमको सिर्फ दिखना है, समझना है अकर्ता भाव से। तो इसमें ये केस है। और दूसरा, हम अब अभी जब परमात्मा से जुड़े हैं, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि सिर्फ ऐसा पर्स चोरी हो गया है तो हमारा अभी मनोदशा बिगड़ जाती है, तो सिर्फ हमको ये प्रॉब्लम परमात्मा से सिर्फ शेयर करना है, दैट्स इट। तो अभी इसके ऊपर मेरे थोड़े क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों स्टेप्स बताए गए हैं आध्यात्मिक संप्रदाय में, जो मैं पहले जुड़ा हुआ था, एक सेपरेशन का और एक कर्म का सिद्धांत का, तो ये काम कैसे करता है? कौन सा जहाँ पे आप जुड़े हुए थे वो कैसे काम करता है? हाँ हाँ, या उन्होंने तो परमात्मा का पूछ रहे कौन सा? कर्म पहले मैं संप्रदाय से जो जुड़ा हुआ था वो कैसे काम करता है? हाँ, वो जिसमें सेपरेशन और कर्म का सिद्धांत तो दिखाया गया था, दोनों स्टेप्स दिखाए गए थे, तो वो कैसे काम करता है, मतलब तो उसके शांति कैसे मिलता है, स्टेबल कैसे रह सकता है इसी। हम्म। देखिए, आपको शांति दो चीज दे सकता है, परमात्मा भी दे सकता है और भगवान भी दे सकता है। हाँ ठीक है, या परमेश्वर बोले तो परमेश्वर भी दे सकता है। हाँ परमेश्वर मतलब परम ईश्वर। हाँ, बराबर। ठीक है, तो परमेश्वर मतलब भगवान। तो हम्म। दोनों आपको शांति दे सकता है। सवाल ये नहीं है कि आपको शांति मिला या नहीं मिला, सवाल ये है कि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लेकिन मैं ये भी कहता हूं, अगर आप जहां पे हैं, जिसके साथ भी है, जो भी कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि काफी है, वो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सुकून दे रहा है, ये मेरे को मेरी चाहत को पूरा कर रहा है, मेरी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, तो मैं कहता हूं आप वहीं रहिए, परमात्मा के पास मत आइए। क्योंकि परमात्मा का जो मेन कंट्रीब्यूशन है, वो तो वैसे भी होने वाला है कि ये आपका लास्ट लाइफ। ठीक है, आप आए या ना हो ये तो होने वाला ही है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं, बहुत दिन भगवान के साथ हम रहे, अब हम परमात्मा के साथ रह के रहना चाहते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, आपको जो सही लगे, लेकिन परमात्मा के साथ रहने के लिए आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा जो आप पहले करते थे। तो फिर भी कुछ लोग बोलते हैं हम छोड़ देंगे। तो ये मत समझिए कि परमात्मा ही सिर्फ आपको शांति दे सकते हैं या सुकून दे सकते हैं, ये भगवान भी आपको दे सकता है। और बेसिकली भगवान तो नहीं, ये ईश्वर आपको देता है। ईश्वर भगवान का एक्सटेंशन है। ठीक है, रहा सवाल आत्मा का, वो आपने सही बोला कि परमात्मा ने कहा है कि आपका आत्मा का इसमें कोई रोल प्ले नहीं है, इसमें सिर्फ ईश्वर का रोल प्ले है। और ईश्वर चाहे तो आपको एकदम गुस्सा दिला दे, ईश्वर चाहे तो आपको शांत कर दे, ईश्वर चाहे तो आपको मोक्ष दिला दे, ईश्वर चाहे तो आपको आनंद में ले जाए। लेकिन ईश्वर ये सब करता है आत्मा के लिखी हुई कहानी के अधीन। तो अल्टीमेटली कर्म के ऊपर ही आ गया सब कुछ, क्योंकि कहानी तो कर्म से लिखा गया है। तो इसीलिए जब आप जिस संप्रदाय में थे, उन्होंने सही बोला, बात कर्म की है, क्योंकि कर्म ना होता तो वो आपका चोरी नहीं करता। कुछ जन्मों के शायद आपका लेन देन बाकी था तो वो पूरा कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी है कि लेन देन हमेशा पूरा नहीं किया जाता है। मैं कर्म के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, प्रारब्ध के ऊपर एक नया वीडियो मैंने बनाया है। अंग्रेजी वाला रिलीज हो चुका है, हिंदी वाला 2-3 दिन में रिलीज होगा। तो वो आप जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको काफी डिटेल में पता चलेगा ये खेल क्या है। तो उसके अंदर मैं अभी नहीं जा रहा हूं,
लेकिन आपने पूछा कि वो कैसे आपको शांत करता है, तो मैं इतना ही कह रहा हूं, वो भी आपको उतना ही शांत कर सकते हैं जितने परमात्मा करते हैं। बराबर, हाँ हाँ। अच्छा परमात्मा जी, इसके ऊपर एक दूसरा भी क्वेश्चन है कि भगवान भगवान से जो शांति मिलती है और परमात्मा से जो शांति सुकून मिलता है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। नहीं, वो परमात्मा से जो मिलता है वो रियल होता है, वो ऐसा कुछ है? परमात्मा से जो मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपके कर्म बंधन को परमात्मा काट रहे हैं। हम्म। जब ईश्वर से मिलता है, वहां कर्म बंधन को काटते नहीं है, वहां सिर्फ आपके थॉट्स और फीलिंग्स, ये दो को थोड़ा शांत कर देते हैं। बराबर तो। तो परमात्मा का काम जो है वो जड़ से होता है। बराबर। लेकिन आप बोलेंगे कि आप जिस संप्रदाय में थे, वहां भी तो उन्होंने कहा कि आपके कर्म कट रहे हैं। हम्म। ऐसा तो वो भी बोलते हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो वो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा? हाँ वो तो है। अगर कर्म काट ही रहे हैं तो हम्म। फिर यही जन्म में क्यों नहीं? हाँ। नंबर एक। नंबर दो, वो क्या बोलते हैं आपको कि आप एक्चुअली जाएंगे कहाँ पे? महाविदेश क्षेत्र में। ठीक है। जो फिफ्थ डायमेंशन में, ये थर्ड डायमेंशन है, वो फिफ्थ डायमेंशन है। यानी आप अभी भी काल के दायरे के अंदर रहेंगे। हम्म। और परमात्मा के साथ जब आप आते हैं, तब न सिर्फ वो इस जन्म में खत्म हो जाता है, बल्कि आप काल के दायरे के बाहर निकल जाते हैं। हाँ। तो ये तो हुआ कि आप मानो आज एक जेल में है, और उस जेल के अंदर एक अंधेरा कोठरी में से निकाल के एक उजाला कोठरी में आपको भेज देंगे, जहां पे आप पहले जुड़े हुए थे। और परमात्मा आपको पूरे जेल से बाहर ले आ रहे हैं। हम्म। ये फर्क है। बराबर है, हाँ। तो ये बात महाविदेश क्षेत्र की नहीं है, क्योंकि वहां भी आप अटके हुए हो। वहां भी आपका सिमंदर स्वामी अटका हुआ है। बराबर है, हाँ। तो वो भी जेल में ही पड़े हुए हैं। फर्क इतना है, उनके जेल में रोशनी ज्यादा है और आपके जेल में रोशनी कम है। इतना ही फर्क है। और परमात्मा पूरा जेल के बाहर ले जा रहे हैं। बराबर है। अभी अच्छा, फर्क क्लियर हाँ हुआ दोनों में? हो गया। अच्छा, इसके ओके। ऊपर दूसरा भी क्वेश्चन है हाँ जो इसमें वर्ष स्टोरी जो होता है वो हमारी स्टोरी लाइन में है, तो उसके बाद हमारी जो मनोदशा डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या वो भी स्टोरी लाइन में रहता है, लिखा हुआ होता है? हाँ, ये भी लिखा हुआ होता है कि आप किस हद तक आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। हाँ आप हाँ। किस हद तक आपका जो बैलेंस है वो आपका बिगड़ जाएगा। वो चाहे गुस्से के दायरे में हो, वो चाहे डर के दायरे में हो, वो चाहे नफरत के दायरे दायरे में हो, वो चाहे और कोई भी चीज के दायरे में हो। तो ये वाला लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर काफी हद तक आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। तो जब ये चीज आप परमात्मा को ऑफर करते हैं, परमात्मा आपको वापस बैलेंस के नजदीक लाते हैं। लेकिन स्टोरी लाइन फिर आपको बैलेंस से दूर ले जाते हैं। फिर वही चीज आप परमात्मा को जब फिर से बोलते हैं और कहते हैं कि परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, वापस परमात्मा आपको बैलेंस के नजदीक ले आते हैं। तो ये खेल कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। स्टोरी लाइन आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाएगा और परमात्मा आपको वापस सकारात्मकता की तरफ ले आएंगे। बराबर है। ठीक है। अच्छा परमात्मा में एक और सवाल है कि हम्म। अपने पुराने प्रकाश में ऐसा बोला है कि भगवान ने को 11वें डायमेंशन से वो तीसरा आयाम में पृथ्वी पर भेजा था, वो आध्यात्मिक का वो योग का सब ज्ञान देने के लिए। तो वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान में तो ऐसा ही कहा जाता है कि भाई आत्मा तो हमारे अंदर है। तो शिव को भी ये पता नहीं था कि आत्मा हमारे अंदर नहीं है, मतलब मनुष्य के अंदर नहीं है, क्योंकि शिव ने ही
ज्ञान दिया था ना आपने। शिव को वो बात पता था, लेकिन शिव को ये बात नहीं पता था कि मैं जो ज्ञान इंसानों को दूंगा, उसके बावजूद भी इंसान कभी भी अपने दुख और दर्द के दायरे के बाहर नहीं आ पाएंगे। चंद लोग आ पाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं आ पाएंगे। ये बात शिव को मालूम नहीं था। हम्म। अच्छा, लेकिन आप अध्यात्म के संप्रदाय में जितने भी गुरु है तो वो तो सब यही बातें करते हैं कि मनुष्य के अंदर ही आत्मा होते हैं। सिर्फ आप ही परमात्मा ने ऐसा बोला है कि आत्मा मनुष्य के अंदर नहीं है। वो लोग इसलिए ऐसा बात करते हैं क्योंकि उनको वही बातें करना होता है जो भगवान ने उनको बोला है। हाँ। तो फर्क इतना पड़ जाता है, भगवान ने क्या बोला और परमात्मा ने क्या बोला। हाँ, बराबर है। और जिस तरह मैं आपको आत्मा, ईश्वर, इन चीजों का ज्ञान देता हूं, इतने कम शब्दों में और इतना क्लियरली कोई भी गुरु ये ज्ञान नहीं देता है। हाँ, वो बराबर। हम्म। तो ये क्यों मैं बोल पाता हूं? क्योंकि इसका मुझे मालूम है ये सब चीजें, क्योंकि मेरी बातें किताबी नहीं है। हाँ जी, बराबर। तो मैं जानता हूं ईश्वर क्या है, मैं जानता हूं आत्मा क्या है, मैं जानता हूं कर्म क्या है, मैं जानता हूं कि ईश्वर और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध है, मैं जानता हूं आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, मैं जानता हूं मनुष्य क्या है, मैं मनुष्य के मन को जानता हूं। तो क्योंकि इन सब चीजों की मुझे जानकारी है, इसीलिए मैं हर चीज को मैं इतने कम शब्दों में और इतना साफ आपके सामने पेश कर पाता हूं। बराबर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। आपने पुराने प्रकाश में तीसरे आयाम से लेकर 11वें आयाम तक का सब कुछ बताया था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड आयाम के बारे में कुछ नहीं बताया, तो कृपा करेंगे आप थोड़ा बताएंगे? फर्स्ट और सेकंड आयाम के अंदर कहा जाता है, एक आयाम होता है वो एकदम जड़, जड़ जैसे पत्थर, पर्वत। हम्म। और दूसरा आयाम जो है वो है फ्लो। फ्लो मतलब मान लीजिए पानी, पेड़। आप बोलेंगे पेड़ तो जड़ है, लेकिन पेड़ के अंदर भी एक फ्लो है। जमीन के अंदर से पानी ऊपर की तरफ जाके पत्तों में जा रहा है, फलों में जा रहा है, फूलों के अंदर जा रहा है, तो वहां भी फ्लो है। फिर जो एनिमल्स है उनके अंदर भी एक फ्लो है। उनका आ, जो ऊर्जा है, लाइफ फोर्स एनर्जी, वो फ्लो कर रहा है। तो ये फ्लो वाला जो है, ये आपका सेकंड, दूसरा आयाम है। पहला आयाम एकदम जड़। हम्म। तो मनुष्य में भी तो एनर्जी फ्लो कर रही है, तो वो तीसरे आयाम में क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर मन है जो उसका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। बराबर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि ये जो 11 जो आयाम है, वो आयाम पूरे एक यूनिवर्स में पूरा फैला हुआ है, और ये आयाम है जो अपनी वो फिक्स एरिया स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसा कुछ क्या है इसमें? आयाम स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन वो स्पेस जिस तरह आप तीसरे आयाम में देखते हैं उस तरह नहीं है वो आपके यूं कहें, तीसरा आयाम ऑब्जेक्टिव है, चौथा पांचवा आयाम सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब यह है आप उसको जिस तरह से अनुभव करोगे, दूसरा जो उस आयाम में है वो उसको किसी और तरह से अनुभव करेगा, क्योंकि वो फ्रोजन नहीं है। तीसरा आयाम फ्रोजन है। हम्म। फ्रोजन का मतलब होता है कि मान लो कि एक बर्फ का टुकड़ा है, वो फ्रोजन है, ठीक है। उसका शेप नहीं बदलेगा, चाहे आप उसे जमीन के ऊपर रखो, चाहे टेबल के ऊपर रखो, चाहे एक बर्तन के अंदर रखो, उसका शेप वही रहेगा जो वो फ्रोजन है। लेकिन पानी फ्रोजन नहीं है। पानी को आप जमीन में रखो तो एक तरह रहेगा, उसको बर्तन में रखो दूसरी तरफ होगा, कप में रखो तो तीसरी तरह होगा। तो हम्म। कहने का ये मतलब है कि तीसरे आयाम के अंदर सब कुछ जड़ है, और ऊपर के जो आयाम है वहां पे सब कुछ एक
फ्लो स्टेट में है। फ्लो स्टेट में के अंदर मतलब है, क्योंकि मैंने फ्लो वर्ड का इस्तेमाल सेकंड दूसरे आयाम के लिए भी किया था, वहां पे फ्लो का मतलब ये था एक्चुअली इट इज फ्लोइंग। चौथे पांचवे के अंदर जो फ्लो है वो फ्लो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है मैं उससे जिस तरह एहसास करूंगा आप उसको उस तरह एहसास नहीं करेंगे। दूसरे आयाम के अंदर फ्लो हर कोई उसको उसी तरह एहसास करेगा। आप भी जानोगे पेड़ के अंदर से पानी ऊपर उठ रहा है, मैं भी वो जानूंगा। लेकिन पांचवें आयाम में अगर आप आ जाओ या चौथे आयाम में अगर आप आ जाओ, वहां पे ये फ्लो वैसा नहीं है, इसीलिए हम उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। आपके लिए वो अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। वहां पे टाइम और स्पेस का एहसास अलग होगा। और जब हर चीज अलग होता है तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहां से 10 किलोमीटर तक थर्ड आयाम है और 10 से 20 किलोमीटर तक चौथा आयाम है। उसको आप बांध नहीं सकते ऐसे। बराबर। लेकिन है सब ब्रह्मांड के अंदर ही। हम्म। तो दूसरे जो ब्रह्मांड है, मतलब 21 ब्रह्मांड दिए हुए, तो दूसरे वो मतलब बाकी के ब्रह्मांड में भी ऐसे आयाम आयाम की रचना की बाकी गई के हुई है। ब्रह्मांड के बारे में परमात्मा इसीलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे मनुष्य नहीं है। वो बोलते हैं तुम्हारा ब्रह्मांड ही तुम्हारे लिए हम्म, आ, तुम्हारे कल्पना के अतीत है, तो बाकी 20 ब्रह्मांड की हम क्या बात करें। बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अ, आपने बोला था कि जब भूत जो बन जाते हैं, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती, मतलब वो पितृलोक में नहीं जाते, वो भूत फोर्थ डायमेंशन में है। और वो इच्छा अपनी पूरी करने के लिए कोई मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो क्या वो फोर्थ डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में आते हैं? नहीं। जब वो मान लीजिए आपके जब वो आपके घर में आते हैं तब वो फोर्थ डायमेंशन में ही रहते हैं और इसीलिए आप उनको देख नहीं पाते हैं। अगर वो थर्ड डायमेंशन में आ जाते तो आप उनको देख पाते। लेकिन उनकी तो फिजिकल बॉडी जैसा कुछ होता नहीं है ना। लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है ना। तो वो भी दिखाई दे सकता है, मतलब सूक्ष्म शरीर हाँ, भी। दे सकता है अगर आपके पास वो सिद्धि हो तो। कुछ कम लोग होते हैं जिनको ये दिखता है कि हाँ। वहां दादाजी अभी कुर्सी में बैठे हैं, वो बोलते हैं, तो मतलब वो क्लेयरवॉयंट है। लेकिन आम इंसान के पास वो सिद्धि नहीं होता है। हम्म, कुछ लोग महसूस करते हैं, हम्म, बराबर। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं महसूस करते। और जो लोग देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो परसेप्शन है वो थर्ड डायमेंशन के अतीत जा रहा है, परे जा रहा है। हम्म, आम इंसान का परसेप्शन थर्ड डायमेंशन के अंदर बांध दिया है, यानी हमारा जो 5 इंद्रिय है उसके अंदर बांध दिया है। बराबर। हाँ, हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। आपने ऐसा बताया था कि भगवान की जो रचना है, जो क्रिएशन है, वो सब एक छलावा है। मतलब ये इट्स अपियर टू बी रियल। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर से पानी लेते हैं हम, पानी। तो पानी तो हम जल। मतलब जल लेते हैं तो आंख से हमको दिखाई देता है। और उसका टेस्ट भी हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श भी हम कर सकते हैं। तो मतलब तीनों इंद्रियों से तो हमें ये रियल लगता है कि पानी है। तो इंद्रियों के परे, 5 इंद्रियों के परे वो अनरियल कैसे होता है? मतलब मैंने ऐसा बोला था पूरा क्रिएशन ड्रीम के अंदर होता है, हाँ, हाँ, उसकी हाँ, ड्रीम। बात कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ, वो पूरा एक स्वप्न है। स्वप्न है। तो मैंने कहा था कि परमात्मा ने जो 5 तत्व और 3 गुण दिए वो एक्चुअल में नहीं दिए थे भगवान को। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट बोल। उन्होंने मन के दायरे के अंदर ये तत्व और गुण दिए। और क्योंकि वो उनके मन के दायरे के अंदर था इसीलिए उनको अपने मन के दायरे के अंदर पूरा क्रिएशन करना पड़ता है। जैसे जब आप रात में सोते हो, आप जो सपने देखते हो वो आपके मन के दायरे के अंदर होता है। हम्म, वहां पर भी आप पानी को फील करते हो,
टेस्ट कर पाते हो, छू पाते हो। हम्म। हालांकि आपको मालूम है सपना सुबह उठने के बाद कि वो सब ड्रीम था, लेकिन फिर भी उस वक्त तो सच था। हाँ। और यही कारण है कि आज जब हम भगवान के सपनों के अंदर रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया सच है। और उसने इस दुनिया को कई सारे लॉज के अंदर, लॉ मतलब नियम के अंदर बांध दिया है। और हम्म। उस नियम के दायरे के अंदर सब कुछ चल रहा है। जैसा एक नियम है गुरुत्वाकर्षण। हम्म। हालांकि ये सपना है, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण सही है, क्योंकि ये नियम है। हम्म। तो कई सारे नियम के अंदर क्योंकि हम जीते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हमारी दुनिया वास्तविक दुनिया है। हमें नहीं लगता कि यह स्वप्न का दुनिया है। हम्म। लेकिन जो योगी इस दुनिया को भेद कर लेते हैं अपनी शक्ति से, अपनी योग बल से, फिर वो हंसते हैं और बोलते हैं ये तो एक छलावा है जिस दुनिया में रहता हूं। तो वो इस दुनिया को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम्म। एक खेल के तौर पर लेते हैं। हाँ, बराबर है। ठीक है। हाँ, समझ गए। अब एक और क्वेश्चन है कि देवी देवता जो डेइटीज है, तो उनकी भी आत्माएं होती, और अगर आत्माएं होती है तो उनकी भी स्टोरी लाइन लिखी जाती है। देवी देवता कुछ के आत्मा होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। हर एक का आत्मा नहीं होता है, नंबर एक। और नंबर दो, ऐसा नहीं है कि जिसके आत्मा होता है उसका स्टोरी लाइन होता है। वो सही नहीं है, क्योंकि स्टोरी लाइन सिर्फ मनुष्य का होता है। हम्म। बाकी बाकी जितनी भी स्पीसीज है उनका कोई स्टोरी लाइन नहीं होता है। हमारा स्टोरी लाइन इसलिए होता है क्योंकि हमें कर्म का बोझ बनाना पड़ता है, हम्म। और कोई कारण नहीं है स्टोरी लाइन का। बराबर है। बाकी अच्छा, जितने स्पीसीज है उनका कोई स्टोरी लाइन नहीं है, और देवताओं का भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। इसमें भगवान खुद भी आ जाता है, उनका भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। भगवान का भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। भगवान का इतना स्टोरी लाइन है कि उनको बार बार मरना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वो तो परमात्मा तय करते हैं ना कि कब। वो परमात्मा तय करते हैं, लेकिन भगवान का इतना ही स्टोरी लाइन है। जन्म लेने के बाद वो क्या करेंगे वो उसका कोई स्टोरी लाइन नहीं है। हाँ, बराबर है। अच्छा, जैसे हम अभी आपसे मतलब परमात्मा से जैसे बात करते हैं, तो सतलोक में जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ की जो आत्मा है, वो भी वन टू वन परमात्मा से बात कर सकती है ऐसे। अगर परमात्मा की मर्जी हो तो। मान लीजिए इस वक्त मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि वो परमात्मा का मर्जी है। हम्म। उसी तरह मान लीजिए कि ये मानव अपने आप को परमात्मा बोलते हुए आपके साथ बात कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये परमात्मा का मर्जी है। बराबर है। तो उनके दायरे के अंदर भी, क्योंकि हम्म। मैंने जैसे कहा था कबीर परमात्मा से बात नहीं कर पा रहे, हम्म। हालांकि वो परमात्मा के संतान है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि आप परमात्मा के बेटे हो तो फिर आप परमात्मा से बात कर पाओगे। उनकी मर्जी हो तो ही आप बात कर पाओगे। बराबर। अच्छा, मुझे और थोड़ा ये मन और चरित्र के बारे में जानना, मन और चेतना के बारे में जानना है कि परमात्मा ने चेतना दी हुई है और भगवान के पास मन है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो ये है कि जिसको हम होश कहते हैं या अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं, आम इंसान ने या गुरुओं ने भी इसी को कॉन्शियसनेस का नाम दे दिया, यानी चेतना का नाम दे दिया। वो चेतना नहीं है, वो होश है या अवेयरनेस है। तो मन का एक अवेयरनेस होता है और ईश्वर का एक अवेयरनेस होता है। जब आप ध्यान करने बैठते हो आंख बंद करके, उस वक्त आप मन से देखते हो मन के विकार को। हम्म। ठीक है। लेकिन
जब आपका पहला बॉडी एक्टिवेट हो जाता है तब आप मन के विकार को मन से भी देखते हो और ईश्वर की होश से भी देखते हो, यानी ईश्वर की आंख से भी देखते हो। इसीलिए कहा जाता है कि पहले दृष्टा दृश्य को देख रहा है और फिर बाद में कोई है जो दोनों दृष्टा को भी देख रहा है और दृश्य को भी देख रहा है। यह हायर स्टेट है। तो वो कौन है जो दृष्टा को भी देख रहा है और दृश्य को भी देख रहा है? वो ईश्वर है। और फिर जब कहते हैं दृष्टा दृश्य को देख रहा है, ये दृष्टा कौन है? ये आपका मन है। और दृश्य क्या है? वो भी आपका मन है, आपके मन का विकार है। तो मन का होश मन के विकार को देख रहा है या मन की साइलेंस को देख रहा है। लेकिन ईश्वर मन जो देख रहा है उसको भी देख रहा है और जिस चीज को देख रहा है उसको भी देख रहा है। तो ये अंतर है। बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में एक दादा भगवान हो गए थे। वो ऐसा बोला जाता है कि दादा भगवान जो है वो अंबालाल पटेल में प्रकट हुए थे और वो 360 डिग्री पे थे, 360 डिग्री पे थे। तो मतलब वो क्या है 360 डिग्री अभी देखिए, उन्होंने जो बोला उसके बारे में मैं इसीलिए बात नहीं करता हूं क्योंकि उनको होश पूरा नहीं था। जहां थे उससे होश ज्यादा था, आम इंसान से होश ज्यादा था। क्योंकि अगर आपका महाविदेश क्षेत्र 5वें आयाम में है, अभी तो आपको छठे से लेके 11वें आयाम तक का कोई होश नहीं है। आपको भगवान के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपको शिव के बारे में कुछ नहीं मालूम, दुर्गा के बारे में कुछ नहीं मालूम। बराबर है। तो फिर मैं अभी दादा भगवान के बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं पेश कर रहा हूं क्योंकि वो जो जहां तक पहुंचे थे उनको लगा था ये अंतिम है, अल्टीमेट है। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं था, वो सिर्फ एक सीढ़ी ऊपर था। और एक सीढ़ी ऊपर का मतलब ये होता है कि आपने जन्म और मृत्यु के काल चक्र के बाहर वो निकल गए। लेकिन काल चक्र के बाहर निकलना तो यही हुआ कि आप अभी स्कूल में हैं और आप फिर कॉलेज में जा रहे हैं, बिल्डिंग चेंज हो गया, इतना ही तो फर्क है। तो जहां से परमात्मा आ रहे वहां पे ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन नीचे से अगर आप देखो आम इंसान की नजर से तो वो बहुत बड़ा फर्क है, वो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उनके स्टोरी लाइन में था, उसके बगैर ये होना मुमकिन नहीं था। बराबर। तो ये तो उनके जन्म के पहले ही तय कर दिया गया था कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और उन्होंने वही सब कुछ किया। तो यूं देखो तो वो भी कठपुतली, आप भी कठपुतली। आप आपके स्टोरी लाइन के कठपुतली हो, वो उनके स्टोरी लाइन के कठपुतली थे। लेकिन उनका होश आपसे थोड़ा ज्यादा था, तो आपको लगा कि ये बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं। बराबर। तो अच्छा, वो भी अभी फिफ्थ डायमेंशन में भी उसमें ही होंगे। ये सब लोग जब काल चक्र के बाहर निकलते हैं, फिफ्थ में जाके अटक जाते हैं। तो फिफ्थ में तो सोल रियलाइजेशन हो जाता है ना, आत्मा साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। आत्म साक्षात्कार और सोल रियलाइजेशन में थोड़ा अंतर है। यूं, क्योंकि आत्मा शब्द बहुत
लूजली यूज किया जाता है। एक शब्द है आत्मन और दूसरा है आत्मा। लोगों ने दोनों को एक कर दिया है। आत्मन ईश्वर है, आत्मा परमात्मा से आया हुआ है, आत्मन भगवान से आया हुआ है। दोनों का सोर्स अलग है, दोनों को आप एक नहीं कर सकते। रहा सवाल अभी आत्मा साक्षात्कार का। साक्षात्कार का मतलब होता है कि मैं अभी जिग्नेश का साक्षात्कार कर रहा हूं, यानी मैं आपको देख रहा हूं, आपकी बातें सुन रहा हूं। ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं होता है आत्मा या आत्मन का। कोई किसी ने नहीं जाना ईश्वर क्या है, किसी ने नहीं जाना ईश्वर कैसे दिखते हैं। जो लोगों ने जाना है वो सिर्फ इतना जाना है कि उनके अंदर एक परम शांति आ गया है, उनके अंदर एक परम आनंद आ गया है, उनके अंदर परम होश आ गया है। इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं अनुभव किया। और लोगों ने उसको मान लिया कि मैंने ईश्वर को जान लिया या मैंने आत्मा के साथ भेंट हुआ मेरा। तो ये शब्द हमें गुमराह करते हैं, और गुमराह इसलिए करते हैं जो लोग इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं उनके पास भी क्लैरिटी नहीं है। उनके पास अनुभव है। किस चीज का अनुभव? परम शांति, परम आनंद, परम होश। ये तीन चीज का ही अनुभव होता है, चौथा कुछ आप ला भी नहीं पाओगे। बराबर। लेकिन ये तीन चीज का अनुभव होना ये नहीं बताता है कि आपने उसको जान लिया जिसने आपको ये सब दिया। तो मान लीजिए कि मैं एक मिठाई खाता हूं, तो मैंने मिठाई के जो स्वीटनेस है उसको अनुभव किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हलवाई को जान लिया। तो इस तरह से ये शब्दों का हेरफेर भी क्यों होता है? क्योंकि क्लैरिटी का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। और भगवान ने कभी ज्ञान दिया ही नहीं है। भगवान का मकसद कभी नहीं था कि इंसान के पास पूरा ज्ञान आए। उसको तो इंसान को बांधना था। एक को उन्होंने स्वाद चखा दिया और बाकी सब उसके पीछे लग गए। और इस तरह हर गुरु हुए। मैं गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने कुछ तो चखा है, लेकिन उनके पास वो उपलब्धि नहीं है जिसके जरिए वो उनके पास जो हजारों लोग आ रहे हैं उनको भी वो वही स्वाद दे दे और वही मुक्ति दे दे। तो ये चीज है। और फिर भी ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि ये भगवान की मर्जी है। अगर ये ना चले तो अध्यात्म का दुनिया खत्म हो जाएगा, और अध्यात्म का दुनिया खत्म हो जाएगा, फिर लोग परमात्मा के पास आना शुरू कर देंगे। तो ना धर्म खत्म होगा, ना अध्यात्म खत्म होगा। बराबर। अच्छा, एक एक थोड़ा क्वेश्चन ये था कि आप आप अभी पुराने पॉडकास्ट में ऐसा बोले थे कि अभी अभी जो मतलब बीइंग्स आएंगे वो एडवांस हो गए, बहुत सारे एडवांस हो गए पिछले पिछले के हिसाब से कंपेयर। लेकिन हम देखते हैं कि अभी 2000 या 1000 साल पहले के जो हमारे जो मंदिर है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। जैसे सोलर टेम्पल है और ऐसा कुछ अजंता इलोरा की जो केव में जो मंदिर बनाए थे शिव का, तो उसमें तो उस समय तो ऐसे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कैसे बनाए गए होंगे? ये जो सब टेक्नोलॉजी है ये सब इंसान का दिया हुआ टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये लोग सब हमारे अर्थ के बाहर से आए थे, अलग अलग ग्रह से आए थे, और उन्होंने उन सब टेक्नोलॉजी को हमें दिया, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने कॉपी करके इन सब इमारतों को बनाया। तो ये मत समझिए कि मनुष्य बहुत एडवांस था। मनुष्य एडवांस नहीं था। कोई आके मनुष्य को सिखाता था इस तरह करो, और मनुष्य वो करता था, और वो लोग
होते थे वो सब चीजों को गाइडेंस देने के लिए। तो वो लोग कहाँ से, मतलब वो नीचे के 7 लोग से आ रहे थे? हाँ। ना अभी ना ना, नीचे 7 लोग से नहीं आ रहे थे, उनका अलग स्टार सिस्टम है। हाँ। जैसे मैं जब अपना मनुष्य योनि में आने के पहले मैं सीरियन स्टार सिस्टम से था, तो वहां से मैं फिर इधर आया। तो इस तरह सीरियन है, प्लेडियंस है, ऑरियंस है, आर्क्टूरियंस है, और बहुत सारे हैं, इसका तो कोई अंत नहीं है। अनुनाकी है। हम्म, बराबर है। तो ये टेक्नोलॉजी उनका है, इंसान एडवांस नहीं था। तो अभी मनुष्य जो बना रहे, तो भी उनकी टेक्नोलॉजी से कॉपी करके बना रहे, जो भी स्ट्रक्चर जो अभी जो नहीं, इस वक्त जो मनुष्य का टेक्नोलॉजी है वो आ रहा है नीचे लोअर वर्ल्ड से। हम्म, ये टेक्नोलॉजी अलग है, ये उनका टेक्नोलॉजी नहीं है जो पहले आया था। हम्म, बराबर है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि ये जो आपकी जो बुक है, तो हम ये बुक हमारे कब्र के ऊपर हम रखते हैं, ताकि घर में आते जाते समय क्या हमारी नजर पड़ती रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े रिचार्ज होते रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पे रखे तो बराबर है। बरोबर है, खाली देखिए गिर ना जाए बस। हाँ। अच्छा। लेकिन उसको वर्शिप मत कीजिए, हाँ हाँ पे हाँ। मत कीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन एक था कि अभी मतलब परमात्मा से मुझे जानना है कि हम मेरे पापा मतलब शुरू से ही वो शुद्ध की खोज में थे, जो प्योर जो होते हैं वो ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते गए, वो लास्ट में हम आपसे 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 मिले। तो मुझे परमात्मा से सिर्फ यही जानना है कि ये परमात्मा 100% प्योर है। परमात्मा 100% प्योर शब्द का फिर आपका डेफिनेशन क्या है वो बताइए। शुद्ध शुद्ध मतलब इसके ऊपर कोई कोई नहीं है, शुद्ध जो है। झूठ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। वो बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि परमात्मा आपके एक्सपेक्टेशन के दायरे के अंदर नहीं उतरेंगे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं अगर परमात्मा है, इतना परम शक्तिशाली है, तो फिर उन्होंने अपने बेटे को सही क्यों नहीं बनाया, उनको बरोबर मार्गदर्शन क्यों नहीं किया, उनका परवरिश क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, परमात्मा एक अच्छे पिता नहीं है। तो फिर आप बोलोगे वो तो फिर प्योर नहीं हुए, क्योंकि आप परमात्मा को समझे ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करूंगा, फिर मेरे बेटा दाएं जाए, बाएं जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, उसकी मर्जी। लेकिन अगर वो मेरे मर्जी के खिलाफ जाता है तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा, लेकिन सुधारूंगा नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि परमात्मा 2-3 बार बोलते हैं कि तुम मेरे मर्जी के विपक्ष जा रहे हो, ऐसा नहीं कि वार्निंग नहीं देते हैं। तो वहां पे फिर भी अगर वो वही करते हैं जो वो कर रहे हैं, परमात्मा फिर पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए ये प्योर शब्द का आप जो ला रहे हैं, ये प्योर शब्द यहां फिट नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में डाला गया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। ठीक है ना, वहां से आप ये सवाल को कर रहे हो। इस बात में कोई शक नहीं कि आत्मा शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि वो जो कहानी लिखता है, वो कहानी उसको असर नहीं करता है। हम जो कर्म करते हैं वो उसको छूता नहीं है, हमारा दुख उसको छूता नहीं है, हमारा दर्द उसको छूता नहीं है, हमारी परेशानी उसको छूता नहीं है। और जब कोई चीज किसी को छूता नहीं है तो वो तो शुद्ध ही रहेगा। अगर आपको किसी का दुख छू जाए तो आप अशुद्ध हो जाओगे।
क्योंकि आपने किसी दूसरे का ले लिया। तो आत्मा कभी किसी का कुछ नहीं लेता है। वो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए जो फिल्म के कहानी लिखते हैं, वो लिखने वाला जो लेखक है, वो कहानी के अंदर तो सब कुछ डाल देता है, अच्छा बुरा हो, लेकिन कहानीकार तो खुद उसकी कहानी उससे तो अफेक्ट नहीं करता है। वो तो जो है वो ही रहता है। तो इस तरह आत्मा भी कहानी लिख रहे हैं, आत्मा इसीलिए शुद्ध है। तो उसमें शुद्ध शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है। रहा सवाल परमात्मा का, तो परमात्मा भी शुद्ध है, क्योंकि परमात्मा तो किसी के कुछ लेते नहीं है। बराबर है, वही बात है। तो हम जो परमात्मा से जो प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनके उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन एक एक ये है कि हमें परमात्मा से जुड़े हुए 3-4 महीने तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं परमात्मा से जो प्रॉब्लम शेयर करता हूँ वो शंका के साथ शेयर करता हूँ, तो उनकी कृपा बनी रहती है फिर भी। क्या करते हैं? संदेह के साथ शेयर करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, अंदर डाउट होता है आपके अंदर? हाँ, कभी कभी डाउट होता है। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ओके ओके। और अभी यार दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो परमात्मा से जो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, परमात्मा वही प्रॉब्लम का मतलब वही प्रॉब्लम पे अपनी कृपा करते हैं। ये उनकी मर्जी है कि वो उस तक सीमित रखेंगे या उसके और भी आगे जाएंगे, ये उनके ऊपर है। ओके ओके। हाँ। और लेकिन एक। हाँ हाँ, जहां बोलिए। तक आपका सवाल है, आपके लिए वो प्रॉब्लम उस वक्त इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पे आपको कुछ रिलीफ चाहिए। हाँ हाँ, बराबर। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है। हाँ। जब मुझ में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं परमात्मा से प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो मुझे अच्छे भी लगते हैं, कि नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स वो आए तो अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भैया आए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं वो मैकेनिकली मैं सिर्फ बोल देता हूँ, मतलब वो परमात्मा से वो मैकेनिकली प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, तो वो भी काम करेगा। हाँ, काम करेगा। हमें नेगेटिव थॉट्स अच्छे क्यों लगता है, मैं आपको बताऊं। नेगेटिव थॉट्स के कारण हमें एक स्ट्रेंथ मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं सही हूं। हाँ जब हम गुस्सा होता है तब हमारे अंदर एक ऊर्जा आता है जो पहले नहीं था, एक शक्ति आता है। आप देखोगे कि एक गुस्से वाला आदमी अगर लड़ता है तो वो ज्यादा लड़ पाता है, हाँ। क्योंकि एक एक जैसे आसुरिक शक्ति उसका जग गया उसके अंदर। तो ये शक्ति के कारण और ये मैं सही हूं, ये सोच के कारण हमें ये चीजें अच्छा लगता है। बराबर है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट थी कि ये हम जो डिजिटल हीलिंग का डाउनलोड करते हैं, तो वो अभी थोड़े हाई रिजोल्यूशन में जो अगर हो सके तो अच्छा होता, क्योंकि वो जूम हाई कर रिजोल्यूशन हो चाहे लो रिजोल्यूशन हो, ग्रेस तो उतना ही है। नहीं, वो जूम करने पर थोड़ा ब्लर हो जाता है आपका फेस। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उतना टेक्निकली एडवांस नहीं है। लेकिन जो है, ग्रेस के ऊपर आप फोकस कीजिए। हाँ, बराबर है मेरा वो। हाँ, मेरा चेहरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बराबर। इतना है कि आपको अभी तो अगर 3-4 महीने हो गए, अब तो आपको फोटो की भी जरूरत नहीं है। अब हाँ, तो आप आंख बंद करके बात कीजिए। मैं वही करता हूँ। हाँ। हाँ। अच्छा, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ? ऑफ कोर्स है ना, है। मैं आप दोनों आप दोनों हैं। अच्छा, ठीक है। परमात्मा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा अंत तक आप जुड़े रहिएगा। जरूर। आप जुड़े रहिए तो परमात्मा हर वक्त जुड़े हैं। श्योर श्योर। ठीक है। ओके, चलो जिग्नेश जी, नमस्ते। इसका कोई